Hello students, now today we are going to learn a new operator, that is a special operator called like. As you know, there are four special operators: between, not between, in, not in, is not, and like operator. Like operator is a special operator which helps us to search for a specified pattern in a column. Suppose if you are not sure about a value, sometimes it happens we are not sure about a value and we have a little hint about that, so we can search these type of values with the help of like clause. It has two types of wide characters. You know, like clause are also known as wide characters. As in computer, if you are going to search any file and if you are not sure about a file value, but if you know its extension, so sometimes you make the use of these wide characters like star, dot. So it can show you the files with a particular extension from which you are searching. In the same way, if we are talking about this SQL, we also have two type of like operators, that is percentage and underscore. Percentage help us to know when we want to search a particular name with a particular character. Suppose I want to search the students or employees whose name starts with N. So I am not sure about the name, but I have a little hint that I want to search the name of those employees whose name started with N or a particular character. To see how you will write, suppose I want to select name only. It's your choice which column you want to display. Then write from employee where, as usual we use where to select a row. Then you will write the name of a column on which you are going to put this operator. Now here we are not going to make use of is equal to operator. When we use like, we do not make the use of is equal to, less than, greater than sign. Okay, now see like operator. So first I will tell you the use of percentage, as there are two characters, percentage and underscore. So see, suppose I want to see the name of those employees whose name starts with N. तो इन starting में ही N है, तो मैंने N put किया, then I have put percentage sign and in quotes. Remember this is very important, क्योंकि ये character value है या date value है, तो आप उसको quotes में ही put करेंगे. And you can see here I have made the use of like character, then put semicolon. Now see, you can see it has shown you the name of only those employees whose name starts with N. ठीक है, तो ये तो वो हो गया कि अगर उनके नेम N से स्टार्ट है. अगर आपसे कहा जाए, सपोज आई आस्क यू टू शो मी द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम एंड्स विद N, जिनके नाम का जो एंड होता है वो N से होता है, तो it will show you this. See, there is only one employee whose name ends with N. तो आपको उसमें क्या करना है, परसेंटेज पहले लगाना, बिकॉज बिफोर दैट यू डोंट नो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर. तो इसीलिए मैंने परसेंटेज का साइन पुट किया, बट आई नो कि दैट करेक्टर इज एट द एंड, तो मैंने उस करेक्टर को एंड में पुट किया है, एंड क्यूज. देयर इज ओनली वन एम्प्लॉय विच हैज़ एंड एन. अगर आपको सारे कॉलम्स या पर्टिकुलर कॉलम देखने तो यू कैन, जैसे मैंने नेम दे दिया, देन आई हैव पुट सैलरी. इट्स योर चॉइस विच what you want to display. तो इट्स नेम इज नवीन एंड सैलरी. अब कई बार क्या होता है, सपोज मुझे ये नहीं पता, बस मुझे ये पता है, जस्ट नो डैट कि इन दैट पर्टिकुलर पर्सन नेम दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज यूज समवेयर. अब जैसे मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो N है वो उसके नेम में कहीं भी यूज़ हुआ है, किसी भी पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट पे. आई एम नॉट श्योर कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उसके नाम में किस पोजीशन पे आता है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, आई जस्ट पुट परसेंटेज फर्स्ट, देन दैट कैरेक्टर विच फ्रॉम विच यू आर सर्चिंग, एंड देन पुट परसेंटेज. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि N के पहले या N के बाद में कुछ भी हो सकता है. अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसके पूरे नेम में N कहीं भी होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे सेकंड पे हो, थर्ड पे हो या लास्ट में हो, कहीं भी N होगा, इट विल शो यू देयर नेम एंड सैलरी. तो सी, these are the employees where you will see their name has N character.
जैसे अब नवीन है तो नवीन में जो एन है वो कहीं भी है, स्टार्टिंग में भी है, एंड में भी है। अब नुपुर है, उसके एंड स्टार्टिंग में है, नुपुरा है स्टार्टिंग में है। सो इन दिस वे सिर्फ एन क्यों, हम कोई और भी ले सकते हैं। आई वॉन्ट टू सी ए, किसी का भी ऐसा नाम जिसमें ए यूज़ हो और कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन, यू जस्ट पुट परसेंटेज फर्स्ट पोजीशन पे, फिर बीच में आप उस करेक्टर को रखोगे एंड देन सेकेंड करेक्टर। नाउ सी, तो यू कैन सी रितिका, कृतिका, नवीन, उदय, नुपुरा, तो दे हैव दिस। सो इन दिस वे you can see we can make the use of like clause with percentage clause. Now I am going to show you underscore. अब underscore हम तब यूज़ करते हैं when we are sure about the number of characters. अब now I want to see the name and salary of those employees whose name has 5 characters. जिनके नाम में मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन से characters हैं, बट आई एम श्योर कि उनके नाम में जो करेक्टर्स हैं वो 5 हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट 5 अंडरस्कोर्स। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसके नेम में 5 करेक्टर्स आ रहे होंगे तो इट विल शो दियर, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, एग्जैक्टली 5 करेक्टर्स। सो लेट मी शो यू बाय एग्जीक्यूटिंग दिस। सी, मुकुंद, नुपुर एंड मोक्ष, तो दे ऑल हैव 5 करेक्टर्स। तो ना तो कम है ना ज़्यादा है। अगर सपोज मुझे 4 देखने हैं कि किसी के करेक्टर 4 हैं, तो उदय इज़ देयर ओनली। नाउ आई वांट टू पुट 6। अब मुझे देखना है कि कौन से ऐसे नेम्स हैं जिनमें 6 करेक्टर्स हैं, तो दे आर नवीन, शैली, नुपुरा। सो इन दिस वे यू हैव सीन द मे आई मेक द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर। अब इसको हम दोनों के साथ यूज़ करेंगे। हियर नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि आई एम गोइंग टू मेक द यूज़ ऑफ बोथ द वाइल्ड करेक्टर्स साइमल्टेनियसली। सपोज आई हैव अ हिंट कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका सेकेंड करेक्टर यू है। ओनली सेकेंड करेक्टर आई नो देयर इज़ यू, बट आई एम डोंट नो देयर नेम, कितने करेक्टर्स हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। तो अगर आपको सिर्फ सेकेंड करेक्टर पता है तो आप एक अंडरस्कोर लगाओ, सेकेंड करेक्टर पे यू लिखो। उसके बाद आपको नहीं पता है कि भाई कितने करेक्टर्स हैं, जस्ट पुट परसेंटेज। तो जो भी ऐसे नेम्स हैं, दोज have second character is u used in his their name, that will show you. See, अब मुकुल है, देखो जिनका सेकंड कैरेक्टर u है सब में, नुपुर में भी u सेकंड कैरेक्टर है और उसमें भी। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ इट एनीवेयर। या फिर अब मुझे कहा जाए कि भाई ऐसा है जिसके में थर्ड पोजीशन पे p है, तो मैंने उसके पहले सेकंड 2 अंडरस्कोर लगा दिए और सेकंड थर्ड पोजीशन पे p लिख दिया। मतलब ऐसे नेम मुझे देखने हैं जिनके थर्ड पोजीशन पे p है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या किया, उसके पहले 2 अंडरस्कोर लगा दिए, जिससे ये श्योर हो जाए कि भाई p के पहले 2 करेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। वो करेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट उसकी थर्ड पोजीशन पे p ही होना चाहिए। तो सी, अब ऐसे 2 लोग हैं, नुपुर एंड नुपुरा। सो इन दिस वे यू कैन लर्न क्लॉज। तो आई होप ये आप इस पर इंजॉय करोगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ा आता है लाइक क्लॉज में। अब इसमें मैं ना आपको एक डेट का भी शो करती हूँ। लेट मी चेक। जैसे ये टेबल है, इसमें लिखा है यूज़ SIS, तो मैं क्या करती हूँ, सबको डिलीट कर देती हूँ। ये आप सिर्फ कैरेक्टर्स पे नहीं, डेट पे भी लगा सकते हो। मैंने लिखा यूज़ SIS सेलेक्ट स्टार फ्रॉम A1। तो मैंने एक टेबल ली जिसमें एक कॉलम है। लेट मी सी कि इसमें डेट ऑफ बर्थ यूज़ हुआ है कि नहीं। तो सॉरी, फर्स्ट मुझे SIS को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन इसको ओपन करूँगी एंड देन इट विल शो मी। हाँ, यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ यूज़ हुई है। अब अगर मुझे कहा जाए कि मुझे उन बच्चों के नेम देखने हैं जिनका जो ज्वाइनिंग या डेट ऑफ बर्थ है वो 1999 है। अब मुझे ये पता है सिर्फ 19। अब आपको पता है उस ईयर में कितने सारे मंथ्स और कितने सारे डेट्स होंगे, मुझे कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे हम लाइक क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम SIS वेयर, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, वेयर वेयर एस नेम, क्योंकि हम एस नेम सॉरी DOB पे लगा रहे हैं, DOB लाइक। अब आपको पता है स्टार्टिंग में तो सब में ही ईयर